Hello students. Today we'll be starting a new unit of your class 12th biology course syllabus. That is unit number 7, genetics and evolution. Now see, this is a very important unit for your examination point of view, not only for CBSE board exams but also for your entrance examination. ठीक है, तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. यू हैव टू गो थ्रू वेरी क्लियरली regarding these three chapters. That is chapter number 5, principles of inheritance and variation, chapter number 6, molecular basis of inheritance, and chapter number 7, evolution. ठीक है, तो पहले दो चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, दिस इज ऑफ जेनेटिक्स, और चैप्टर 7 जो है आपका वो है इवोल्यूशन का. ठीक है, so we'll be discussing about all these topics and yes, this is a very lengthy unit. ये बहुत लंबा होने वाला है, तो you have to keep writing the running notes as well. जब हम लोग क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों को रनिंग नोट्स भी उसमें कंटिन्यू करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो फील्ड ऑफ जेनेटिक्स है, दिस वाज द कंट्रीब्यूशन, दिस वाज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेगर जोहन मेंडल. ठीक है, सो ग्रेगर जोहन मेंडल का ही कंट्रीब्यूशन है जिसके चलते हम लोग जेनेटिक्स के बारे में इतना कुछ जान पाए. राइट, बिसाइड्स दैट देयर आर मेनी अदर कंट्रीब्यूशंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एंटायर बॉडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज consequent development with major contributions from Watson, Crick, Nirenberg, Khurana, that is Hargobind Khurana, Korenberg, Banger, Monad, Banner. In fact, Hugo de Veris also has played a very important role. T.H. Morgan. These are very eminent personalities in the field of genetics, in the field of biology, and they have contributed a lot to understand genetics. ठीक है, so इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये नाम कुछ आप याद रख लीजिए. सबके बारे में तो नहीं पढ़ना है. we'll not be reading about all these scientists. A few of them will be studying in your chapters. Okay, so students, let's start chapter number 5, principles of inheritance and variation. Okay, now before starting the chapter I would like you people to understand certain terms. तो पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स चैप्टर है इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आने वाले हैं, और ये टर्मिनोलॉजीज आप लोग याद रख लीजिए. अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही टर्म्स हम लोग थ्रू आउट दिस 2 चैप्टर्स स्टडी करेंगे. ओके, तो इसके बाद जो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वर्ड बोल दूंगा, सिर्फ टर्म बोल दूंगा. आपको समझना है कि वो टर्म किस चीज को रेफर कर रहा है. ओके, सो लेट अस बिगिन. The first term that we need to understand is genetics itself. Genetics is the study of genes, their mode of inheritance and variation. तो genetics branch ही है, study of genes, genes का study होता है, their mode of inheritance. Now this inheritance, or you can call as heredity, कभी कभी इसको heredity बोल के refer किया जाता है. I'll just put it here. Okay. तो ये वाला टर्म भी यूज किया जाता है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी बोल सकते हैं आप उसे. एंड द वेरिएशंस. नाउ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी लिटरली मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जिस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. Whereas वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, when these characters are transmitted from one generation to another, certain amount of changes or certain amount of deviations is seen in the expression of character. आप इसका जो एग्जांपल है इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, हमारे बॉडी में जो जीन्स होते हैं हमारे फादर और मदर से आते हैं. सो इट इज लाइक कि हमारे बॉडी का जो भी कैरेक्टर होगा वो फादर या मदर की तरह होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता. There are certain characters in your body which are different. It varies from your father and mother. So when these genes are transmitted from parents to offspring, little bit of change comes into these genes, and that change is known as variation. या फिर वेरिएशन को कभी-कभी इस तरह से भी रेफर किया जाता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. अब ह्यूमन पॉपुलेशन देख लीजिए, कोई दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं लगेंगे, दे विल नॉट बी कंप्लीटली सिमिलर एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स. ओके, तो यहाँ पे एक स्पीसीज में भी जितने इंडिविजुअल्स हैं सब में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. तो ये जो डिफरेंस इन कैरेक्टर्स आता है उसको बोला जाता है वेरिएशन. So genetics is the study of genes, their mode of inheritance and variation. Okay. Now the next term that we'll be discussing about is the gene itself. Gene, it is a sequence of nucleotides on a DNA or chromosome
that encodes synthesis of a gene product or character. ठीक है, तो ये जो जीन वर्ड है, पहले इसको जीन नहीं बोला जाता है. ग्रेगर जोहान मेंडल ही रेफर्ड टू दिस एज फैक्टर. ठीक है, पहले पहले वो उसको फैक्टर बोलते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसका कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एंड देन दैट वर्ड फैक्टर वाज एक्सचेंज्ड बाय द टर्म जीन. ठीक है, now in this sequence it is a sequence of nucleotides on DNA or chromosome that encodes for synthesis of a gene product. यहाँ पे हम लोग जीन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो वो आरएनए हो सकता है, स्पेसिफिकली एमआरएनए ही होता है. तो एमआरएनए फॉर्म होगा, उससे फिर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, तो ये बोलते हैं हम लोग जीन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ द डीएनए, प्रोडक्ट्स ऑफ द जीन. या फिर कोई फिनोटिपिक कैरेक्टर, एनी फिनोटिपिक कैरेक्टर, आपका स्किन कलर, आपका हेयर कलर, आपका आई कलर, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी इसी के चलते ही आते हैं. ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा इसको. Now see, this is a chromosome, okay? As you can see in on your screens, there is a chromosome like this. Now chromosome has coiled DNA. Now this you have studied already in class 11th. That is the reason मैं आप लोगों को बोला था कि जब ये यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर जो है क्लास 11 में उसको थोड़ा पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि उसी के साथ ये चैप्टर रिलेवेंट है. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है. हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अगर देखोगे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ सपोज यू आर टेकिंग वन ऑफ सच क्रोमोसोम. नाउ दिस क्रोमोसोम इज एक्चुअली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. वो डीएनए का ही कॉइल्ड फॉर्म है. नाउ इस डीएनए को अगर हम लोग बाहर निकाल देते हैं, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये पर्पल कलर, ब्लूइश पर्पल कलर में दिखाया गया है, लेकिन बीच में यहां से यहां तक देखिए एक सेगमेंट है जो पिंक कलर में दिखाया गया है. Now this is a set of nucleotides, A, T, G, C, C, T, G, A, वैसा एक सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जीन बोला जाता है इसे. इट मींस दिस सेगमेंट विल रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक कैरेक्टर. ना इसको समझने के लिए आप लोग ये सेंटेंस का सहारा ले सकते हैं. अब देखिए आपके यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस लिखे हैं, जेनेटिक्स का डेफिनेशन लिखे हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स और देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, ये सेंटेंस है मेड अप ऑफ लेटर्स, मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स. ठीक है, नाउ सी व्हेन देयर इज गैप, THE, उसके बाद गैप STUDY, उसके बाद गैप OF, ऑफ, उसके बाद गैप. तो यहाँ पे जो आपका गैप आ जा रहा है, हर एक सेगमेंट, अब ये गैप के चलते एक सेगमेंट जो बन गया है, हर एक सेगमेंट एक वर्ड फ्रेम करता है. ठीक है, अब इमेजिन कर लीजिए कि ये टोटल सीक्वेंस जो है, इसमें हम लोग विदाउट स्पेस लिख देते, THESTUDYOFGENESTHEIRMODEOF. तो वैसे करके अगर हम लोग एक सीक्वेंस लिख देते तो वो होता टोटल डीएनए. अब उस डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स, मतलब STUDY, इतना सेगमेंट, इतना न्यूक्लियोटाइड, STUDY, स्टडी, दैट हैज अ मीनिंग. स्टडी मतलब पढ़ना या फिर सीखना या फिर जानना. वैसे ही हर एक डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट एक जीन कहलाता है, जो किसी जीन प्रोडक्ट के लिए कोड करेगा, विच इज एमआरएनए, या फिर किसी कैरेक्टर के लिए कोड करेगा. हम लोग इसको बाद में देखेंगे जब सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे कि ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस से डीएनए से आपका प्रोटीन बनता है और वही प्रोटीन आपके बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज जीन्स. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर. अभी थोड़ा समझ में आ गया आप लोगों को. देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन दिस बाकी का टोटल चैप्टर रहेगा. ठीक है, the next term that we need to understand इसी के साथ रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम. तो देखिए एक डीएनए में ऐसे बहुत सारे जीन्स होंगे, देयर विल बी मेनी सच जीन्स इन द सेम डीएनए और इन द सेम क्रोमोसोम. और हमारे बॉडी में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सारे डीएनए होते हैं. तो आपके बॉडी में सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट कैन बी कॉल्ड एज जीनोम. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी जीन्स हैं, सबको अगर आप सम टोटल कर दे, सबको मिला दें, दैट बिकम्स जीनोम. Genome is the sum total of all the genes present in an organism. एक organism के body में जितने भी genes होते हैं, सबको बोला जाता है genome. They will come under genome. अब इसी के साथ related एक और word है जिसको बोला जाता है gene pool. तो यहाँ पे जब gene pool बोलते हैं हम लोग, it is a stock of different genes in a interbreeding population. Simply बोला जाए तो the total number of genes in a population. अब आप छोटा चीज इसको एग्जांपल की तरह ले लीजिए. आई थिंक दिस विल मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड. अब इंडियंस हम लोगों का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है, फीचर है, लेकिन इंडिया एक इतना डाइवर्स कंट्री है, आप हर एक पॉपुलेशन का फीचर्स अलग अलग होगा.
लाइक टेक द एग्जांपल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, थाईलैंड, सॉरी नागालैंड, मिजोरम, उस तरफ अगर चले जाए तो वहां पे आप लोग देखेंगे वहां के जो लोग हैं वो अलग दिखते हैं। दे हैव ए फ्लैट फेस, दे हैव ए फ्लैट नोज, तो देयर जीन्स आर लिटिल बिट डिफरेंट, उनके पॉपुलेशन में वो जीन अलग है। अब उस तरह से अगर आप साउथ इंडिया में आ जाएंगे, यू विल फाइंड पीपल, they will be little dark complexion skin, somewhat curly hair, some straight hair, and they will have different features. और उसको फिर नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइए, पंजाब साइड है, पंजाब एंड हरियाणा, दे आर टॉल पीपल, दे आर फेयर एनफ, एंड दे हैव ए वेरी शार्प नोज, वेरी शार्प फीचर्स, फेशियल फीचर्स, तो वेल बिल्ट बॉडी। तो ये देखिए, इंडिया एक ही कंट्री है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे पॉपुलेशन है, हर पॉपुलेशन का जीन सेट अलग है, हर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक ही पॉपुलेशन के, उसको बोला जाता है जीन पूल। द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स present in a single interbreeding population is called as gene pool। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, जेनेटिक्स, जीन, जीनोम एंड जीन पूल। ओके, let's move on to the next one। The next term that you will be studying is alleles। now ये alleles क्या होते हैं? देखिए, alleles और genes बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, there is a little bit confusion between alleles and genes, but it is not very difficult to understand। सिंपल सा बात है, a pair of genes which codes for the same character and present in the same locus, locus means position, distance from the centromere, in a homologous pair of chromosome। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताया कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर 23 पेयर्स बोला जाता है। देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी। तो हर एक पेयर को अगर आप लेंगे, लेट्स टेक वन सच पेयर टू अंडरस्टैंड। सपोज यू आर टेकिंग ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हमारे बॉडी के जो 23 पेयर्स है उसमें से एक पेयर आप निकाल देंगे ना। उस पेयर में आप देखेंगे, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इफ on one chromosome there is an eye color gene at a specific position, on the other chromosome also there will be that eye color gene at that specific position। ठीक है, सिमिलरली ब्लड टाइप का जीन अगर यहाँ पे है तो उसका वैसा ही एक जीन यहाँ पे भी होगा। हेयर कलर का जीन यहाँ पे है तो उसका एग्जैक्टली वैसा एक जीन यहाँ पे भी होगा। ग्रोथ का जीन यहाँ है तो यहाँ पे भी होगा। लेकिन ये दोनों जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं। लाइक अगर एक क्रोमोसोम का आई कलर जीन ब्राउन आई कलर के लिए कोड करता है तो दूसरा आई कलर जीन ब्लू आई कलर के लिए कोड करता होगा, या फिर दोनों सेम भी हो सकते हैं, ब्राउन आई कलर ब्राउन आई कलर, ब्लू आई कलर ब्लू आई कलर, बट दे कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रास्टिंग। यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज किए कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब ये ब्राउन आई कलर हो सकता है, ये ब्लू आई कलर हो सकता है। वैसे अगर ब्लड टाइप देखें, ये ब्लड टाइप ए हो सकता है, ये ब्लड टाइप बी हो सकता है, या फिर ये ओ हो सकता है, ये ए हो सकता है। सिमिलरली हेयर कलर जीन एक ब्लैक हो सकता है, एक ब्राउन हो सकता है, दोनों भी ब्लैक हो सकते हैं, दोनों भी ब्राउन हो सकते हैं। तो ये जो सेट ऑफ जीन्स होते हैं इन एलीलिया, इन जीन्स को बोला जाता है एलील्स, ए सेट ऑफ जीन्स। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, आप इस तरह से ले सकते हैं, दिस वन सेट इज वन एलील। ठीक है, ये वन पेयर, ये एक और एलील। नाउ दिस वन पेयर, दिस इज वन मोर एलील। Okay, so this is allele। allele means a pair of contrasting genes which encode the same character। मतलब देखिए, ये पहला वाला आई कलर के लिए है तो सिर्फ आई कलर, दोनों जीन्स आई कलर के लिए कोड करेंगे। हाँ, लेकिन एक ब्लू आई कलर के लिए कोड कर सकता है तो दूसरा ब्राउन आई कलर के लिए कोड कर सकता है। एक अगर ए ब्लड ग्रुप के लिए कोड कर सकता है जीन तो दूसरा ओ ब्लड ग्रुप के लिए कोड कर सकता है। तो उस तरह से फॉर द सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग हो सकते हैं। ओके, and they are located at the same locus। locus मतलब position, it is the distance from the centromere that is called as locus। okay, so ये हो गया alleles। allele पेयर में होता है, जीन सिंगल होता है। ये बेसिक फंडामेंटल आप समझ लीजिए। ठीक है, नाउ इसी के साथ रिलेटेड एक और वर्ड है, हम यहाँ पे यूज भी किए हैं उसको, I'll just add to that word, that is homologous pair। अब हम लोग बोल रहे हैं कि homologous pair of chromosome, it is a pair of similar chromosomes in a diploid set where one chromosome is from father and the other one is from mother। तो इसी डायग्राम में मैं आपको समझा लेता हूं। सपोज ये एक होमोलोगस पेयर है, हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं हर कोई क्रोमोसोम पेयर में होता है, और उस पेयर का क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम फादर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम मदर से आता है। दैट इज वेरी क्लियर, यू नीड टू गेट इट इनटू योर माइंड कि ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग देख रहे हैं, तो एक क्रोमोसोम, ये टोटल, ये पूरा क्रोमोसोम फादर से आया होगा। ठीक है, और ये जो दूसरा सेट क्रोमोसोम है ये मदर से आया होगा।
one chromosome comes from the father, the other chromosome comes from the mother, but they are similar in arrangement of genes and similar in size shape. इनका साइज शेप सेम होगा, अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होगा, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है, एक फादर से आता है एक मदर से। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जब एलील्स हम लोग स्टडी कर रहे थे तो एक ब्राउन हेयर कलर हो सकता है तो दूसरा ब्लैक हेयर कलर हो सकता है, एक ब्राउन आई कलर हो सकता है तो दूसरा ब्लू आई कलर हो सकता है, एक ब्लड ग्रुप ए हो सकता है तो दूसरा ओ हो सकता है, बिकॉज ये फादर मदर से आता है, एक फादर से आता है एक मदर से आता है। तो दैट इज द रीजन देयर इज दिस डिफरेंस इन एलील्स। ओके, सो ये जो पेयर हो गया, इस टोटल पेयर को हम लोग बोल सकते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म दैट वी विल अंडरस्टैंड इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपके बॉडी में क्या क्या जीन्स हैं, आपका जीनोटाइप क्या है, उसी को बोला जाता है। लाइक हमारे बॉडी में कौन कौन से जीन है। अब अगर यहाँ पे देख लीजिए आपका जो ये कलर ऑफ जीन है, यहाँ पे सपोज आपका ब्राउन आई कलर का जीन है, सो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, ब्राउन आई कलर जीन। लेकिन ये जो जीन है ये क्रोमोसोम के अंदर है, हम तो इसे देख भी नहीं सकते, वी कैन नॉट सी इट इवन, इट इज अ वेरी 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 माइक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो व्हाट वी डू टू अंडरस्टैंड दिस, वी डेजिग्नेट देम बाय लेटर्स, उसको हम लोग लेटर से डेजिग्नेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आई कलर का जीन कर रहे हैं, सपोज ब्राउन आई कलर का है तो उसको कैपिटल बी से कर दिया जाएगा, और उसका अगर दूसरा है व्हिच इज कॉल्ड एज डोमिनेंट रेसेसिव है, दो अलग अलग जीन्स होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरा अगर आई कलर है, सपोज बी विल रिप्रेजेंट बी फॉर ब्राउन हेयर। ठीक है, सिमिलरली उसका रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज सॉरी हम लोग आई कलर का देख रहे हैं ना, सो लेट अस सी ब्राउन आई। ठीक है, और अगर स्मॉल बी लिख रहे हैं तो वो ब्लू आई हो गया। ओके, तो ये हो गया आपके जीनोटाइप्स। नाउ इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं विद योर कंप्यूटर, जो आप लोग पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ओके, अब सॉफ्टवेयर इज दैट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर व्हिच यू कैन नॉट सी एंड टच बट इट कैरीज आउट द फंक्शन। हार्डवेयर इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर व्हिच यू कैन सी एंड टच। तो यहाँ पे ये जो जीन है इसको आप देख नहीं सकते, इट इज लाइक ए सॉफ्टवेयर, ये देख नहीं सकते, ये आपके जीन के अंदर है। हाँ, लेकिन उसके चलते जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो आप देख सकते हैं। लाइक ये जो जीन है, ये जो कैपिटल बी जीन है, उसके चलते ब्राउन आई है, तो आप किसी इंडिविजुअल को देख के बता सकते हैं कि उसका ब्राउन आई है। सो व्हिच यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड, दैट इज द फिनोटाइप, उसको बोला जाता है फिनोटाइप। ठीक है, I'll just put that word here, that is called as phenotype, the physical expression of the genotype. लेकिन ये जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, we cannot see them, they are small segment of the chromosome। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, we represent them by letters, different letters से हम उसको represent करते हैं। दो अलग अलग letters यूज करते हैं, अगर डोमिनेंट जीन है तो कैपिटल लेटर यूज होगा, अगर रेसेसिव जीन है तो स्मॉल लेटर। कैपिटल जीन bold letter, you can say capital alphabets, and the recessive genes will be coded by small letters। तो ये डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे while we'll be discussing about the Mendelian's laws। लेकिन इतना याद रख लीजिए, एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है। ठीक है, नाउ फिनोटाइप क्या होता है, वो फिजिकल एक्सप्रेशन है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कैपिटल बी है दैट विल बी द जीनोटाइप, लेकिन ये जो जीन है इसके चलते जो कैरेक्टर होगा, जो ब्राउन आई होगा, वो आप देख सकते हैं, दैट इज अ फिनोटाइप। Things which you can see, physical expression of characters is called as phenotype, whereas the genetic constitution of an organism is called as genotype। अब जब हम लोग ये कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं, सपोज ये दो जीन्स हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप आई कलर का हम लोग लिखे हुए हैं, इसका रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे बी। सपोज ये वाला जीन जो है आपका, ये कैपिटल बी है, और यहाँ पे जो जीन है आपका सपोज स्मॉल बी का है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू इट हियर। Now suppose this gene is capital B and this gene is small b। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्राउन आई कलर है, फादर का ब्राउन आई कलर है, सॉरी तो फादर का ब्राउन आई कलर है और मदर का ब्लू आई कलर है। ऐसा भी हो सकता है कि फादर का ब्राउन आई कलर है, मदर का भी ब्राउन है, तो यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल बी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फादर का ब्लू आई कलर है, स्मॉल बी यहाँ पे आ जाएगा, और मदर का भी ब्लू आई कलर है, स्मॉल बी यहाँ पे आ जाएगा। तो कीपिंग दैट इनटू माइंड, हमारे पास अलग अलग सेट ऑफ जीन्स के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसको हम लोग समझते हैं थ्रू दिस। दो वर्ड्स मैं और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वन इज होमोजाइगस। होमोजाइगस मींस टू सिमिलर सेट ऑफ जीन्स। अगर कैपिटल बी हो गया, यहाँ पे कैपिटल बी है
सपोज इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, सपोज देयर इज दिस कैपिटल बी हियर, दिस जीन, और यहाँ पे भी कैपिटल बी है, जहां पे हम लोग स्मॉल बी लिखे हैं, मदर का भी कैपिटल बी है, तो ये बन जाएगा होमोजाइगस। होमो मीन्स सिमिलर, जाइगस मीन्स पेयर, जाइगो मीन्स पेयर। तो पेयर ऑफ जीन्स जो है अगर सिमिलर पेयर ऑफ जीन्स बन जाते हैं, दिस जीन्स, इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही ब्लू आई कलर के हैं, मतलब स्मॉल बी ये भी है सपोज, एंड इवन द मदर इज ऑल्सो स्मॉल बी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग होमोजाइगस बोल सकते हैं, मींस बोथ द जीन्स विल बी सिमिलर, कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिया हूँ बिकॉज मेंडल ही इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट किए थे। वो टॉलनेस ऑफ प्लांट पहली बार रिप्रेजेंट किए थे और उसको वो इसी लेटर से डेजिग्नेट किए थे, टॉलनेस टी। अगर टॉल प्लांट है कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट या फिर शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी। तो ये तो हो गया सिमिलर, लेकिन जैसे यहाँ पे नीचे हम लोग लिखे हैं डिफरेंट भी हो सकता है, एक कैपिटल बी तो दूसरा स्मॉल बी भी हो सकता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे द हेट्रोजाइगस कंडीशन, डिसिमिलर सेट ऑफ जीन्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो एलिलिक जीन्स हैं, ये जो एलील्स हैं, हम लोग बोले थे एलील्स हमेशा पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, तो ये जो पेयर ऑफ जीन है तो वो अगर सेम हो गए होमोजाइगस, अगर पेयर ऑफ जीन डिफरेंट हो गए जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस, ठीक है। Now do not get confused between homologous and homozygous. Homologous मतलब पूरा क्रोमोसोम, ये टोटल क्रोमोसोम पेयर को हम लोग होमोलोगस बोलते हैं, लेकिन जब होमोजाइगस वर्ड आता है सिर्फ जीन को रेफर किया जाता है। Okay, so understand this difference. When you are saying homologous, it is a total pair of genes, and when you are saying homozygous, it is just the gene. Homologous मतलब total chromosome. Sorry, homologous means the total pair of chromosome, both the chromosomes, whereas homozygous means the genes, pair of genes. Capital B, small b, capital T, small t, whatever. The pair of gene is called as homozygous. Okay. So these are some of the terminologies you need to understand before getting into genetics. तो इसको पढ़ लीजिए, और कुछ terminologies हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे during the course of study. ठीक है, जैसे आपको बताया मैं, डोमिनेंट होता है, रेसेसिव होता है, मल्टीपल एलिलिज्म होता है, there are many such terminologies. तो उसको हम लोग during the course of study पढ़ लेंगे. Okay. So thank you students. In the next class we'll move on to Mendel's laws of inheritance.